All right. Okay. Yeah, how are you doing, Ritika? How are you doing? कैसा चल रहा है आपके I'm बोर्ड्स good, कैसे sir. चल रहे हैं? Great, बढ़िया great, चल great. रहा है सर. आज फर्स्ट वोट Okay. था. Okay. Okay. So you were actually quite inquisitive and inquiring about the relationship between astrology and a student's career and a student, right? So Yes, sir. it's a great question because nowadays boards are going and due to Corona, a lot of question marks has happened to a lot of students. A lot of students are quite anxious about the career. The economy is in a bad shape, so nobody knows what exactly career they should choose. So it's a good question. Yeah. So first, tell me. So what are the questions that you have? Just let me know. Sir, actually, I just want to ask about how will my exams be going? Like, Okay, cool. board That's exams are all going right. on. All right. All right. All right. Fantastic. So, Ritika, let's do one thing. Straight away, obviously, we need to go to a chart to understand the transits. All right. The transits is nothing but so how much do you know about astrology, Ritika? Sir, I don't know about astrology. I want to Okay. learn about astrology. Okay, fine. That's the beauty of astrology is कि ज्यादातर लोगों को हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही. All right, क्योंकि हमारे कल्चर में है शुरू से याद से नहीं from prehistoric times even I don't know if you know this. Lord Rama's guru was Vashisht, who is one of the great doyens and father figure of astrology. So let's go to your chart and try to understand how the things, how your inquiry would be answered. All right, how it's going to be. Sir. So let's go to your chart. Okay, so I just shared the screen. I have your chart snippet with me. Okay, so can just let me know when you are seeing the screen. All right. Sir, हो रहा है show. All right, sure. All right, great. So what I'm going to do is, this is called a natal chart. All right, this is called a natal chart. What is a natal chart? These are the planetary conditions you are born with. All right, this shows the the advantages, the pluses and minuses in your life and life's various assets like education and marriage and health and whatever. So all the things it will show. Yes. Now next are the transits. Transits actually are basically the daily planetary movement or the monthly or the yearly planetary movement, which shows the exact fructification of events that is going to take place. Let's say that these natal chart is just like a promise. Okay, the planets are promising some things and your transit charts are confirmations. ठीक है. So जरूरी नहीं है कि किसी ने प्रॉमिस किया तो वो कंफर्म ही करेगा, एक्सेप्ट ओके सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्ट सैटर्न. ऑफ कोर्स सैटर्न अगर प्रॉमिस करता है तो वो ऑटोमेटिकली कंफर्म्ड ही माना जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर ट्रांजिट. ट्रांजिट्स आर नथिंग बट द प्लैनेटरी मूवमेंट्स इन द करंट ज़ोडिएक. अभी कौन से राशि में कौन सा प्लैनेट, तो मैं पहले प्लॉट कर लेता हूँ. ये तो आपका नेटल हो गया ना. सो नेटल के ऊपर मैं प्लैनेटरी प्लॉट करूंगा. सो लेट मी टेक अनदर कलर. Let me take a blue color. So, okay, blue is for, transits. So I'm just, drawing this legend. So let's understand transit. Okay. So सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं राहु केतु का सबसे पहले प्लॉट करना है. सबसे इंपॉर्टेंट 4 प्लैनेट्स को हम प्लॉट कर लेंगे. सबसे पहले कौन से? राहु, केतु, Jupiter and Saturn. Okay. So don't have to worry. I'll just explain it to you one by one. Rahu, Ketu are obstacles. Jupiter is education. Okay, or the final confirmation, and Saturn is karma, how you have worked hard or not, and how it's going to give the result. And finally, the planet for knowledge is Mercury. Okay, so we are going to see how Mercury is faring, if it is in a good position or not. Very simple. Okay, I'm not going to go into any nakshatra lords and all that, so I'm going to just simply plot it and you understand it. So Rahu is right now in a Taurus, and Ketu is in Scorpio. Jupiter is just now plotted here, matlab come here in Aquarius. Saturn is in here, and let's say, and okay, fine. Then where is your Mercury? Mercury is right now in Ketu, that is in the 3rd house with Ketu. And where is Venus? Venus is in middle of it. And what else remains? And let's forget about moon, because moon change करता है हर राशि को. लेकिन आज का दिन आपका बोर्ड कैसा है? तो मून आज की डेट में है आपके यहाँ पर. कहाँ पर है?
आपके 6th में है मून, ऑलराइट, मतलब वर्गों में। सो 1 2 3 4 5 6 7 दो रह गए हैं। सो सन भी आज के डेट में यहीं पर है, तो 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, एक और रह गया, कौन सा रह गया देखो, सैटर्न हो गया, मार्स, मार्स, ब्यूटीफुल। सो लेट्स अंडरस्टैंड मार्स। तो मार्स अभी है आपका यहां पर, okay. So Mars is in in Libra, Sun, Ketu and Mercury is in Scorpio, Venus is in Sagittarius, Saturn is in Capricorn, Jupiter is in Aquarius and Rahu is in Rahu is in Taurus. So सबसे पहले देख लेते हैं क्विकली कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। और एक चीज और देखना है आपके चार्ट में से, एक कि आपके चार्ट में से रेट्रो प्लैनेट कौन सा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेट्रो प्लैनेट। सो आपका जो जुपिटर है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, आपका जो जुपिटर है ये रेट्रो है। सो आई जस्ट व्हाट आई डू इज, मैं इसको, ये जो आपका नेटल जुपिटर है, यहाँ पर एक सर्कल मार्क करूंगा और यहाँ पर आर लिख दूंगा, उल्टा आर। ओके, सो रेट्रो का मतलब है जुपिटर इज ऑल्सो गोइंग टू गिव द रिजल्ट ऑफ हिज प्रीवियस ज़ोडिएक। Beautiful, great, perfect. Now we are going to find out the result. Your question is how your exam would be today. So let's find out Chandrama. So Chandrama is your daily mind. So this is the mind. This is Ketu, and Ketu is in 6. 6 is a big institution. So यहाँ पर हम देखते हैं कि okay, Ketu, Chandrama is well placed. But however थोड़ा बहुत confusion जरूर रहेगा क्योंकि राहु केतु के बीच में है। थोड़ा सा आपको apprehensive जरूर रहेगा आज कि अच्छा गया है कि नहीं, लेकिन ये क्या रियलिटी है कि नहीं वो आगे जाकर देखेंगे। सो इट विल बी लिटिल, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो होगा। एंड क्योंकि यहाँ मरकरी के साथ है तो एनीथिंग लाइक मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, ये सब चीजें। किसका एग्जाम था आज? कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, एसएसटी, ठीक है। या सो सोशल स्टडीज इज आल्सो ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट इज where is your Mercury? As I said, Mercury is a main thing. All right, Mercury is right here, so I'm going to take red, and Mercury is right here. And now we have to see कि एक तो वो 8 में है, राहु के उसमें राहु केतु के क्वाड्रेंट में है। However, let's understand Jupiter. So यहाँ पर जुपिटर के उसमें नहीं है, तो वेल रिताक्षी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सोशल स्टडीज में खास कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं। नहीं है सर। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। ओके, इट विल बी ओके टाइप्स। ओके, क्यों? व्हाई? अगेन लेट्स सी, मरकरी इज एक्चुअली एक तो कंबस्ट है बिकॉज आज मरकरी का डिग्री और सूर्य का डिग्री सेम है, केतु के पास है, और यहाँ पर जुपिटर का कोई साथ नहीं मिल रहा है खास, ना नेटल में मिल रहा है, 7 8 9 यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, और मरकरी का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं। तो आई वुड से कि ओके फाइन, मरकरी एंड केतु एंड सूर्य विद योर नेटल जुपिटर है यहाँ पर, और कुछ खास मिल नहीं रहा है। सो मरकरी इज काइंड ऑफ अलोन, एंड तो यहाँ पर आपको एग्जाम, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम के वहां पर सेंटर में पहुंचने भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, आई कार्ड के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कुछ पेपर वगैरह लिखने में भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। और लेट्स अंडरस्टैंड सैटर्न्स पोजीशन। सैटर्न इज हियर, सो 7 8 9 10, और यहाँ पर 1 2 3, तो इट्स काइंड ऑफ द फाइनल वर्डिक्ट इज योर पेपर इज काइंड ऑफ ओके, नॉट टू ग्रेट, नॉट टू बैड। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम मेन आई होगी केतु एंड मार्स से, केतु इज एंशिएंट, यानी आपको आई होगी हिस्ट्री में ज्यादा दिक्कतें। सर आई थी, थोड़ी बहुत आई थी। हाँ, हिस्ट्री में बाकी जो था, बाकी इट वाज वेल एंड गुड, बट हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। हिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, और क्योंकि ये सूर्य है, सो हो सकता है क्योंकि सूर्य ने यहाँ पर वो किया है, तो आप पढ़ के गई होंगी लेट्स से मेजर सब्जेक्ट्स लाइक कैपिटल्स एंड किंग्स एंड एम्परर्स, लेकिन आ गए होंगे अबाउट केतु इज एंशिएंट, मैंने एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर हो सकता है कोई जो आपके पढ़ाई में हो और क्वेश्चन में हो वो थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर एक और चीज हो सकता हो कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है पेपर में,
तो सर आगे जो मतलब जो मेरे आ रहे नेक्स्ट, एग्जाम्स, हाँ, अपकमिंग एक्सेलेंट एग्जाम्स एक्सेलेंट, है, वेरी तो गुड क्वेश्चन। उनमें भी क्या कुछ ऐसा इशू होएगा या फिर क्या आपका होगा? नेक्स्ट एग्जाम कब है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर, ओके फाइन। हाँ तो जी। 2 दिसंबर को वीनस जो है वो सैटर्न के पास मूव कर जाएगा, और आपका मरकरी 2 दिसंबर में यहाँ पर मूव करने जा रहा होगा। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट जो आपका पेपर है, वो पेपर क्या है, रिलेटेड टू व्हाट? साइंस। साइंस, ओके साइंस फाइन, इट्स। ठीक है। तो आपका यहाँ पर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर अगर मरकरी बस ट्रांजिट में आने ही वाला है, तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि या ये थोड़ा सा आपको थोड़ी मेहनत करवाएगा जरूर। एंड साइंस में फिजिक्स वुड बी योर प्लस पॉइंट। फिजिक्स को अच्छी तरह पढ़ के जाना, बिकॉज मार्स यहाँ पर सीधा देख रहा है, तो फिजिक्स मे बी योर वीक पॉइंट, क्योंकि आपके चार्ट में लग रहा है कि फिजिक्स का आपका वीक पॉइंट है, तो उसी में आप जोर देना। आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स तो निकल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा जोर देना, बिकॉज ऑफ योर बैड प्लेसमेंट ऑफ और वीक प्लेसमेंट ऑफ मार्स। ओके, तो मार्स इज फोर्स, मार्स इज एनर्जी, मार्स इज इलेक्ट्रिकल। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना, सो इट विल बी ब्रिलियंट फॉर यू, क्योंकि वो मरकरी इसी को फेस करेगा, मार्स को ही फेस करेगा, और सैजिटेरियस में फेस करेगा। सैजिटेरियस ऑल्सो ट्रैवल, तो यहाँ पर मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स, ये सब चीजें सैजिटेरियस देता है। तो यहाँ पर इनर्शिया, जो भी फिजिकल आपका जो चैप्टर्स हैं, राइट, रिलेटेड टू फिजिक्स तो होगा ही। ओके, यहाँ पर क्योंकि एक 9th हाउस है, और यहाँ पर आपका केतु के साथ भी एक रिलेशनशिप आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या डेफिनेटली इट इज फिजिक्स। केमिस्ट्री भी इतना नहीं रहेगा जितना फिजिक्स होगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अब, फिजिक्स में मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक आई वाज हाँ, स्टडीइंग सो few फिजिक्स hours में ago. प्रॉब्लम, या सो I was facing problem in physics. तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कौन कौन सा चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। चैप्टर्स जो आपको प्रिपेयर करोगे वो है आपका एनर्जी, जिसमें Okay. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। आई डोंट नो, मेरे को ज्यादा सिलेबस का मालूम नहीं है, बट समथिंग टू डू विद एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, देन मूवमेंट। एंड क्योंकि केतु के आसपास है, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री भी याद कर लेना, किसने क्या किया था, न्यूटन श्यूटन व्हाटएवर। सो यहाँ पर मतलब मेजर एम्फेसिस आपका फिजिक्स में तो जरूर होना चाहिए। Okay, sir. ओके, और क्योंकि और मार्स जो जो मेरा है, हाँ, मार्स जो है कंप्यूटर्स को भी डेपिक्ट करता है। सो यहाँ पर अगेन कंप्यूटर्स, अगेन लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंग्स, सो थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स का भी आ सकता है, बट कंप्यूटर का टेक्निकल पार्ट। और सर जो मेरा चार्ट आप देख रहे हैं उसमें आपको देख के क्या लगता है कि जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट होगा would be good or ओके something फाइन, like? लेट्स सी, एक्सीलेंट रहेगा। एक्सीलेंट क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड क्यों मैंने बोला एक्सीलेंट। सिंपल, वेरी सिंपल। आपका देखो, सबसे पहले जुपिटर का प्लेसमेंट देख लेना पड़ता है। जुपिटर है वीनस के पास, दो गुरु एक साथ बैठे हैं और अब एडुकेशन दे रहे हो, तो ये तो आपका एक प्लस पॉइंट हो गया, बड़ा सा प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो जुपिटर है, जुपिटर आपका रेट्रो भी है। ठीक है, अब जुपिटर जो है यहाँ पर बैठ के आपका मरकरी के से 12th हो रहा है, तो ये मरकरी इज अ विद्या कारक, तो यहाँ पर जुपिटर का सपोर्ट पे मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो और ऊपर से जुपिटर आपका ये तो नेटल हो गया। अगर मैं सैटर्न को देखूं, सबसे इंपॉर्टेंट, सैटर्न भी आपको तीसरा दृष्टि मरकरी पे डाल रहा है, तो आई वुड से ये 90% के आसपास आपका स्कोर, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसके आसपास तो रहेगा ही। 90 to 95% आपका स्कोर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, Okay, क्योंकि sir. और सैटर्न ने भी ओके कर दिया, सैटर्न ने ओके कर दिया, जुपिटर ने ओके कर दिया, और 7 8 9 7 8, और जुपिटर जुपिटर को ही देख रहा है, then it's brilliant, it's nice, and obviously साइंस ही लेना चाहोगे आप? हाँ जी। हाँ, तो yeah, absolutely, no problem, no problem, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और साइंस में भी शायद, क्योंकि जुपिटर, मून और केतु है, सो मोस्ट प्रोबब्ली यू आर गोइंग फॉर अ मेडिकल लाइन एज वेल, राइट? Yes, sir. Yeah, so I think it's brilliant. I think it's brilliant.
like I can't focus on study properly. You can't focus. That is because of your Ketu. So what I suggest is very simple. Have a Lord Ganesha in front of you whenever you are going to sit for the exams like this. Okay, and before you start your studies, just you can do Tratak and all that, but don't do all these things right now. Just pray to Lord Ganesha and he will grant you your wishes. Don't worry. Okay. So have this Ganesha with you, something like this, you know. I also keep it because I also need a lot of focus in my work. Or the business, like I was giving exam today, I was like, I lost my confidence. I thought I'm just going to fail or something like this. देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा इल प्रिपरेशन था ही, लेट्स एडमिट इट. बहुत सारी चीजें थी जो प्रिपेयर करना था लेकिन नहीं हुआ. ओके, आपने चैप्टर्स कुछ प्रिपेयर किए थे, कुछ गए, बट डोंट वरी, कुछ नहीं है. वो कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस माइंड का गेम होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. और माइंड जहां पर ऊपर नीचे होता ही रहता है, इट फ्लक्चुएट्स, इट्स ओके. प्रिपेयर वेल. कॉन्फिडेंस के लिए कोई एग्जाम मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है. नो एक्शनेबल्स, फालतू के मैं एस्ट्रोलॉजिकल चीजें आपको नहीं बताऊंगा. जस्ट प्रे टू लॉर्ड गणेशा, प्रिपेयर वेल, कीप योर माइंड कूल, एंड आपके बाकी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे. जैसे मैंने कहा ही, आपको प्रेडिक्शन दी है, 90 to 95% आपका पक्का है ही है. फैंटास्टिक पोजीशन से आपके जुपिटर, मरकरी, सैटर्न का. So don't worry, you are going to be amazing. Amazing result. No worries. No worries. और सर, क्या मेरा कभी फॉरेन में मतलब सेटलमेंट हो पाएगा? फॉरेन सेटलमेंट. ओके, फॉरेन सेटलमेंट तभी हम देख सकते हैं जहां पर, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. फॉरेन सेटलमेंट हमारा राहु के सेटलमेंट में होता है, राहु के उसमें होता है. राहु इज इन योर 12th, 100% फॉरेन सेटलमेंट है. सर, जो कैरियर होगा, मैं मतलब कौन सी लाइन करूं? ओके, कैरियर में कौन से लाइन करूं? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सैटर्न. सैटर्न विल, देखिए मेरे हिसाब से आपका कैरियर टीचिंग में बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपका जुपिटर, मून, केतु एक साथ बैठा हुआ है. जब भी ये होता है, टीचिंग लाइन आपका फैंटास्टिक है. ओके, बिकॉज सैटर्न को जो पहला जो मिलेगा, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, होल्ड ऑन. या सैटर्न को जो फर्स्ट मूवमेंट मिलेगा, ये रहा सैटर्न, इसको फर्स्ट मूवमेंट मिलेगा जुपिटर मून को ही. तो जुपिटर मून इज प्योर प्रीचिंग. टीचिंग तो आपका फैंटास्टिक जाएगा ही जाएगा, और बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन में जाएगा. उसके बाद क्योंकि वो सीधा वीनस को देख रहा है, सो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएगा. सो आई थिंक टीचिंग कुड बी योर वन ऑफ द मेजर थिंग्स. एंड दूसरा, मरकरी राहु भी है. यू कैन ऑल्सो बिकम अ प्रोफेसर एज वेल ए रिसर्चर. ठीक है, रिसर्च भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो. सो ये प्रोफेशन आपका, 2 प्रोफेशन आपके पास आ गए, रिसर्च एंड टीचिंग. सो अगर दोनों को मैं जोड़ लूं तो ऑब्वियसली यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ लेक्चरर, प्रोफेसर काइंड ऑफ लाइन. इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू. और यहां से आप कहीं भी, आपको स्काई इज द लिमिट, बिकॉज 12th में राहु है, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, और जुपिटर रेट्रो होके राहु को देख रहा है. सो आई थिंक आपका बाहर जाना, आपका अब्रॉड जाना नियरली साइंड ऑफ है. सो आपका कोई क्वेरी 100% है, आपको चले जाओगे आप, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. अभी जुपिटर अभी 10th में है. सो लेट्स से अनदर 12-13 नेक्स्ट 13 इयर्स के अंदर अंदर आप चले जाओगे. ओके, जैसे मैं 11th में साइंस विद मेडिकल साइंस लेना, उसके लिए स्ट्रीम लेना कर रही थी. तो क्या वो स्ट्रीम मेरे लिए सही है, या फिर मैं किसी और स्ट्रीम के लिए ऑप्ट करूं? नहीं, आई थिंक मेडिकल सूट्स यू अ लॉट. मेडिकल, या मेडिकल सूट्स यू अ लॉट. व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्विकली. एक तो मरकरी जो है, मरकरी जो आपका विद्या कारक है, दिस इज अ नॉलेज कारक, राइट? मरकरी इज इनटू साइन ऑफ अ लिक्विड, दैट इज 12. ऊपर से राहु के साथ है, दिस इज गुड, यानी रिसर्च टाइप ऑफ ब्रेन है. उसके बाद मरकरी इज मीटिंग इज सूर्य. तो मरकरी सूर्य तो सीधा मेडिसिन दे ही देता है. ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट मून विच इज लिक्विड, एंड केतु अगेन इज केतु इज अ डॉक्टर. सो यहाँ पर मेडिसिन आपके लिए, स्पेशलाइजेशन ऑन मेडिसिन रादर देन सर्जरी. तो आपका मेडिसिन में रिलेटेड होगा. और 6th आपका, जैसे आई थिंक योर स्पेशलाइजेशन वुड बी मेडिसिन रादर देन एनीथिंग एल्स. सो डॉक्टरी लाइन सर्टेनली सूट्स यू. ओके. Okay.
So we are ending this session. Thank you very much. If you have more queries, we will do this interviews again. Think of some more questions that your friends, if you want to ask your friends to join, they can also join, regarding their career counseling. So I'm ending this recording, and do share it with your friends. And if if anybody who is looking at this recording and hearing this, if they like it, they share it with their friends. It's very important for to look at the charts, especially for career people, career-oriented students, so that they know exactly where their destiny lies and where their energies lies. Destiny though is what you make. It's up to you where your energies lies, so that you can align your energy with the kind of stuff that you need to do. All right. So thanks a lot. Thank you very much for joining, Ritika. And I hope to speak to you again. So let me know when how your exams go. Next exams go, which we have predicted would be good. Okay, would be good. And so let me know. Okay, so prepare, and also tell me if physics questions like inertia, movement that we discussed, if it came or not. Okay, and also some historical figures like the father of mathematics or whatever. Just let me know how it did go. So we will catch up again in your next when your next exam gets over. Okay. Thank you so much, sir. All right. Take care.